Hello students, in this video we are going to discuss some more questions on applications of integrals. So the first question is, find the area of the region bounded by the curve y is equal to x plus 1 and the lines x is equal to 2 and x is equal to 3. Means ये कर्व x is equal to 2 लाइन और x is equal to 3 लाइन के बीच का जो बाउंडेड एरिया होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो इट विल बी लाइक दिस, दैट ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है. ओके, सो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन हो जाएगी एंड x इज इक्वल टू 2 y एक्सेस के पैरेलल लाइन जो x इज इक्वल टू 2 पे इंटरसेक्ट करेगी और x इज इक्वल टू 3 y एक्सेस के पैरेलल जो x इज इक्वल टू 3 पर इंटरसेक्ट करेगी. सो 1, 2 एंड 3 इन तीनों लाइन के बीच का जो रीजन है वो रीजन ये शेडेड रीजन है और ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो देखिए ये जो एरिया है ये x एक्सेस से कनेक्टेड है. ओके, इन तीनों लाइंस के बीच का तो एरिया है ही, लेकिन जो फोर्थ साइड है मीन्स 1, 2 और 3 लाइन और जो अनदर लाइन है दैट इज एक्स एक्सेस. तो क्योंकि ये एक्स एक्सेस है इसलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे. ओके, सो दैट एरिया विल बी इंटीग्रेशन a to b y ऑफ dx, ये हो जाएगा हमारा एरिया. लेकिन आप ये देखिए कि x के रिस्पेक्ट में आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ x एक्सेस पर आप देखिए 2 to 3. सो एरिया विल बी इंटीग्रेशन 2 to 3 एंड द वैल्यू ऑफ y. So here from the question the value of y is x plus 1 and dx. So when you will integrate it, it will be the integration of x will be x square by 2 and integration of 1 will be x and limit will be from 2 to 3. Now when we'll put the value, area will be first upper limit minus lower limit, so it will be 3 square upon 2 plus 3 minus 2 square upon 2 plus 2. It will be 9 by 2 plus 3 minus 4 upon 2 minus 2. So 9 by 2 plus 3 minus 2 minus 2. 9 by 2 plus 3 minus 4. So it will be 9 by 2 minus 1. Therefore it will be 7 by 2 square unit. Now the next question is, find the area of the bounded region by the curve x is equal to 2y plus 3, y is equal to 1 and y is equal to minus 1. So now you can see here that this is x axis, y axis, and this is y is equal to minus 1 line. This is y is equal to 1 line, these two lines, and the third line is x is equal to 2y plus 3. Okay, it is in the form of y is equal to mx plus c. So this 1, 2 and these 3 lines, so the area of the region bounded by these 3 lines and y axis. Okay, so now the area is connected with y axis, so we will
integrate it with respect to y. So the area of the bounded region will be a to b x dy. Now you can see that the area, this shaded area on y-axis, this area is from y is equal to -1 to +1. So it will be y -1 to +1, and the value of x from the question is 2y plus 3 dy. Okay. Now when we will integrate it, so it will be 2y square by 2 plus 3y from -1 to 1. When you will put the limit, so it will be y square plus 3y from -1 to 1 1 square plus 3 into 1 minus -1 square plus 3 into -1. Okay, upper limit minus lower limit. 1 plus 3 minus 1 minus 3, so it will be 4 minus 2, so it will be 4 plus 2 6. So the final answer will be 6 square unit. Now we have the next question. Area of the region bounded by the curve y is equal to cos x between 0 to pi. 0 टू पाई के बीच का cos x फंक्शन का एरिया हमें फाइंड आउट करना है. सो देखिए, ये x एक्सेस से ही कनेक्टेड है एरिया. ओके, सो y इज इक्वल टू cos x फंक्शन का निकालना है हमें डायरेक्ट. तो यहाँ पर ये cos x, ये x का फंक्शन है, इसलिए हम x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे यहाँ पर एरिया. सो इट विल बी फ्रॉम a टू b y of dx, and we have to find out the area from 0 to pi. So it will be cos x dx. अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो cos फंक्शन है इसका ये हाफ पोर्शन x एक्सेस की y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब x के अप साइड, और ये बाकी जो हाफ पोर्शन है ये x के डाउन साइड है. ओके, और ये जो डाउन साइड है ये एरिया क्या आएगा, निगेटिव आएगा. इसलिए मुझे इसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और इस एरिया को मुझे मॉड लेना पड़ेगा. सो इट विल बी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. देखिए 0 टू पाई बाई 2 जो कॉस फंक्शन है, ओके, और प्लस फिर पाई बाई 2 टू पाई लेना पड़ेगा, बट यहाँ पर मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स लेना पड़ेगा हमें. ओके, क्योंकि ये एरिया निगेटिव डायरेक्शन में और ये निगेटिव आएगा इसलिए. नाउ area is equal to cos x integration sin x from 0 to pi by 2 plus here sin x pi by 2 to pi, and it will be in mod. So area, when you will put the limit,
it will be sine pi by 2 minus sine 0 and then plus sine pi minus sine pi by 2. Sine pi by 2, it will be 1 and it will be sine 0 0, so it will be 1 plus sine pi will be sine 90 plus 90 and it will be cos 90. Okay, and cos 90 will be 0 minus sin 90 minus 1. So since it is mod, it will be 1 plus 1 is equal to 2 square unit. This will be the area. Okay, in the next question, find the area bounded by the curve y is equal to sin x between 0 to 2 pi. अब आप देखिए ये साइन कर्व है और साइन कर्व में ये 0 to 2 पाई यहाँ तक इसका एक जो साइकिल होता है साइन एक्स का वो 0 to 2 पाई होता है और हमें ये पूरा एरिया निकालना है. अब आप देखिए कि इस एरिया में ये एक अपर पार्ट और लोअर पार्ट ये दोनों अलग अलग हाफ पार्ट हैं और इस पार्ट में यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रिप लेते हैं तो ये पूरा रीजन फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रिप काम आएगी. ओके और ये एक स्ट्रिप लेते हैं तो इस पूरी हाफ साइकिल का एरिया फाइंड आउट करने में ये वाली स्ट्रिप काम आएगी. सो इसे दो पार्ट में हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग जो ये इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देख रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको dx और इसकी जो हाइट है उसको हम y कंसिडर करते हैं. ओके और इंटीग्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि हम अगर इस छोटी सी स्ट्रिप का अगर एरिया निकाल लेते हैं और हम कंप्लीटली मान के चलते हैं कि ये सभी ऐसी स्ट्रिप्स बहुत सारी यहाँ से यहाँ तक बनेंगी और उन सब स्ट्रिप्स का जब प्लस होगा समेशन होगा तो हमें एक कंप्लीट एरिया मिलेगा और वो समेशन ही इंटीग्रेशन होता है. ओके सो इसलिए यहाँ पर दो पार्ट में होगा इसका इंटीग्रेशन. देखते हैं. ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फर्स्ट 0 to पाई. ओके और क्योंकि साइन एक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन है इसलिए साइन एक्स डी एक्स प्लस. अब ये देखिए फिर से यहाँ पर जो एरिया आएगा एक्स एक्सेस के बिलो एक्स एक्सेस के नीचे वाला जो एरिया आएगा वो निगेटिव आएगा और उस एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर मॉड लेंगे और ये एरिया हो जाएगा पाई टू 2 पाई. Okay, so now the calculated area will be that sin x and the integration of sin x is minus cos x. Okay, from 0 to pi plus it will also be, but it is in mod, minus cos x from pi to 2 pi. Okay, now when we will calculate it, it will be when we will put the limit, so minus cos pi minus cos 0 plus
it will be minus cos 2 pi minus cos pi, and it is in mod. So it will be minus cos pi plus cos 0 plus mod minus cos 2 pi plus cos pi. देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे cos पाई की वैल्यू निकालनी है. आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए cos पाई विल बी 90 प्लस 90. ओके, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2. सो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 ऑल शुगर टी कप, इट विल बी साइन एंड कॉसेक प्लस बाकी सभी माइनस. सो ये हो जाएगा, it will be, when you will calculate cos pi, it will be cos pi by 2 plus pi by 2. So it will be sin pi by 2. Okay, and it will be sin and cosec plus and remaining minus, so it will be minus. It will be minus 1 plus cos 0, and cos 0 is 1 plus now cos 2 pi, and we can write that 2 pi as 3 pi by 2 plus pi by 2. Okay, so cos 3 pi by 2 plus pi by 2, it is 3 pi by 2 and plus cos pi by plus pi by 2. So it will come under all sugar tea cup. Cos and sec both are positive and remaining are negative, so it is cos, so it will be positive, and since it is 3 pi by 2, so it will change sin pi by 2, so plus 1 will be there. Okay, so here it will be plus 1 and plus cos pi की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं. cos pi minus 1 आया था. Okay, so when you will calculate it, it will be 1 plus 1 plus in mod it will be minus 1 minus 1. So 2 plus mod of 2, so 2 plus 2 is equal to 4 square unit. Okay, now the next important question is find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis, the line y is equal to x, and the circle x square plus y square is equal to 32. It is CBSE 2014-18 asked question. Now this circle is in the form of x square plus y square is equal to a square, where a is the radius. So one will compare it by the equation of the circle. Standard equation of the circle passing through origin is
x square plus y square is equal to a square. So when you will compare, a square is equal to 32, then a is equal to root 32. You can write it, so it will be 4 root 2. Okay, so the radius of the circle will be 4 root 2, and that's why, see here, this is the radius, so the coordinate of a will be 4 root 2 comma 0, because x-axis y will be 0, and here 0 4 root 2 because this is the radius. Now this line is y is equal to x. In the first introduction video I have mentioned this, that this will be the line y is equal to x. So ये y is equal to x line और ये सर्कल, ठीक है, और x एक्सिस, ये अगर इनके बीच का जो शेडेड रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना है. अब इनके बीच का शेडेड रीजन है, तो आप देखिए इनके बीच का शेडेड रीजन होगा ओ ए बी ओ. ये देखिए, ये y इज इक्वल टू एक्स, ये x एक्सेस और ये सर्कल, तो ये सर्कल की बाउंड्री है, ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये x एक्सेस है. तो इनके बीच का पूरा जो एरिया होगा वो ये होगा, ये पूरा रीजन शेडेड रीजन होगा और ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सेस पर. तो क्योंकि यहाँ पर देखिए हम पहले इस B के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि B y इज इक्वल टू एक्स और सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसलिए पहले हम वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं. ठीक है, सो B is the intersecting point of circle and y is equal to x line. So क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32. यहाँ पर हम y इज इक्वल टू एक्स पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32. इट विल बी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. पुट इन y इज इक्वल टू x. तो जब आप x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू भी प्लस माइनस 4 होगा. इट मीन्स कि लाइन और सर्कल के दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनेंगे, +4 एंड -4. सो ये देखिए, ये सर्कल का ये फर्स्ट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये -4 हो जाएंगे और ये +4 हो जाएंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. अब हमें जो एरिया निकालना है, तो हम आप देखिए इसे हमने ये B से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4 है. इट मीन्स कि y एक्सेस से डिस्टेंस भी इसकी 4 है और x एक्सेस से डिस्टेंस भी 4 है, तो इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 0. हमने ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ये इस पूरे रीजन को, इस शेडेड रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए की है. ठीक है, ये जो पार्ट है हम इस पॉइंट को D नाम दे देते हैं. ओके, सो एरिया ऑफ ओ डी बी ये हम डिफरेंट अलग से निकालेंगे, और एरिया ऑफ ए डी बी ये हम अलग से निकालेंगे. ठीक है, सो एरिया ऑफ ए डी बी ए और इधर ओ डी बी ओ, ये दो अलग अलग एरिया हो जाएंगे. एक स्ट्रिप हमने इस रीजन में ली और एक स्ट्रिप हमने यहाँ इस रीजन में ली. ये रीजन कनेक्टेड है सर्कल से. ओके, इसलिए हम
जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वहाँ पर हम सर्कल की वैल्यू रखेंगे, और ये रीजन कनेक्टेड है लाइन से, इसलिए हम यहाँ पर लाइन को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। सो अब आप देखिए कि फर्स्ट जब हम ODBA इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, सो वो होगा, ये देखिए ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, तो हम x को इंटीग्रेट करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 4, क्योंकि x यहाँ पर जो x वेरी हो रहा है वो 0 to 4 हो रहा है। सो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 4 और x को इंटीग्रेट करेंगे। ओके, एक पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम ADBA वाले रीजन को फाइंड आउट करने के लिए ये जो है ये 4 to 4 रूट 2, ये 4 to 4 रूट 2 में वेरी कर रहा है, और ये कनेक्टेड है सर्कल से, और सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। सो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 32 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो आएगी रूट में। सो y इज इक्वल टू, यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करेंगे इस रीजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कल से कनेक्टेड है और यहाँ पर लाइन से कनेक्टेड है, इसलिए लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ देखिए आप, फ्रॉम 0 to 4 लाइन वेरी कर रही थी, इसलिए x dx, और 4 to 4 रूट 2 कनेक्टेड है सर्कल, सो रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहले हम इस पार्ट को निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट, it will be area is equal to 0 to 4 x dx, it will be x square by 2, 0 to 4। जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, it will be 16 by 2, 8 square unit। Now in the second part, integration 4 to 4 root 2, 32 minus x square dx। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, 4 रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू so now we will put the value in this formula. It will be, see here, a square minus x square, so x by 2, 4 root 2 square minus x square plus a square 4 root 2 square by 2 sin inverse x upon 4 root 2, and limit will be 4 to 4 root 2. So when we will put the limit here, see, upper limit, we will put the upper limit 4 root 2, okay, 4 root 2 upon 2, and when you will put here 4 root 2, then it will be
0 plus it will be 32 by 2, so it will be 16 sine inverse. When you will put 4 root 2 here, 4 root 2, 4 root 2 cancel out 1, this is upper limit, minus when you will put the lower limit, so it will be 4 by 2, it will be 32 minus 4 square 16 plus it will be 32 by 2 sine inverse 4 upon 4 root 2. Okay. So here it will be 0 and sine inverse 1. So that 1 will be sine 90, and then it will be 2 into 32 minus 16, 16, and root 16 will be 4 plus it will be 16 sine 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, so 1 by root 2 and 1 by root 2 will be sine 45. Okay, so it will be, see here, it will be 16, area is equal to 16, sine inverse sine cancel out, so pi by 2 minus 4 to ja 8, and it will be plus 16 into pi by 4. It will be 8 pi minus 8 plus 4, 4 ja 16, so plus 4 pi, 8 pi minus 8 minus 4 pi, so it will be 8 pi minus 4 pi, 4 pi minus 8 square unit. ये सेकंड एरिया आया हमारा. ओके, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. अब हम दोनों को प्लस कर देते हैं. सो रिक्वायर्ड एरिया क्या था? ODABO इज इक्वल टू, हमारा फर्स्ट पार्ट में एरिया आया था 8 प्लस 4 पाई माइनस 8 ये है, सो 8 से 8 कैंसिल आउट, फाइनल 4 पाई square unit will be the area of shaded region.